Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 12th history chapter and imperial capital Vijayanagara. And imperial capital Vijayanagara. My dear, in this chapter we had already discussed about the different topics. Today we will try to read your new topic, the sacred center. The sacred center. Choosing capital. 5.1 में इसमें टॉपिक है. 5.1 में टॉपिक है आपका choosing capital. My dear, in this topic we will read about the capital of Vijayanagara. The starting of my class, the starting of this chapter, I was given the introduction of this chapter, where I told you the Vijayanagara Empire had different capital and different time, different kings rising. It was also discussed by me that during that time, during the starting time when Vijayanagara emerged, the imperial capital was different. Sangam, Salu, Tulu and Arivadu dynasties, they ruled on Vijayanagara from 14th to 17th century. 310 years Vijayanagara Empire was in existence. This is the very long period. So on the basis of that, on behalf of that, you can say that if this area was ruled as a Vijayanagara Empire last 1 century, 2nd century, 3rd century, 3 शताब्दियों तक इस साम्राज्य पर शासन हुआ, तो इस साम्राज्य का शासनकर्ता कौन था? साम्राज्य के शासनकाल के दौरान इसकी क्या राजधानी लिखी थी, कैपिटल लिखी था? नहीं. मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग क्लास में, मैंने आपको वहाँ पे समझाया था कि राजधानी एक नहीं थी, राजधानी अलग अलग थी. और मैंने आपको हम्पी, विजयनगर, पेनुकोंडा, चंद्रगिरी, अनेगोंदी, कई सारी कैपिटल के बारे में बताया था. अगर आप पूरा साम्राज्य के बारे में देखें तो ये टॉपिक हम लोगों ने पहले ही कवर कर लिया था. फिर भी वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर इतिहास. आपके किताब में जो दिया गया है उसको हम लोग कवर करने का प्रयास. वी नाउ मूव टू द रॉकी नॉर्दर्न एंड ऑफ द सिटी. 5.1 टॉपिक है आपके बुक में, इसको देखिए. कहता वी नाउ मूव टू द रॉकी नॉर्दर्न एंड of the city on the bank of the Tungabhadra. According to local tradition, these hills sheltered the monkey kingdom of Bali.
Okay, that area on that region, Vijayanagar Empire was flourished. Their local mythos. A story, according to this story, this area was ruled by monkey rulers, Bali. Okay, and Sugriv, Bali and Sugriv. Ramayana. I think there is no need to explain about the story of Ramayana. When I am telling the Bali and Sugriv, then suddenly it is hunt in the mind that yes, we have heard this name in the famous epic रामायण. हमने रामायण में बाली और सुग्रीव के बारे में पढ़ा है. तो कहता है विजयनगर एम्पायर जिस क्षेत्र में विकसित था, जिस क्षेत्र में फैला हुआ था, वो क्षेत्र, वो राज्य बाली के द्वारा शासित था. बाली उस पर शासन करता था. एक दूसरे माइथॉट्स के कहानी, दूसरे परंपरा के अनुसार ये रामायण में कहानी उल्लिखित थी. दूसरी परंपरा के अनुसार अदर ट्रेडिशन सजेस्टेड दैट पंपा देवी, द लोकल मदर गॉडेस, पंपा देवी local mother goddess, and कहता है द पंपा देवी, local mother goddess, did the penance in these hills in order to marry Virupaksha. She got married, Pampa Devi got married with Virupaksha. विरूपाक्ष से इनकी शादी हुई. पंपा देवी की शादी किससे हुई? विरूपाक्ष से हुई. ठीक है. कहता है इस क्षेत्र में जो दो ट्रेडिशंस हमको मिलते हैं. पहला जो ट्रेडिशन है उसके अकॉर्डिंग ये साम्राज्य जो विजयनगर था वो मंकी किंगडम था जिस पे बाली शासन करते थे. रामायण में किष्किंधा पर्वत के नाम से प्रसिद्ध था. दूसरा ट्रेडिशन जो लोकल ट्रेडिशन है उसके अकॉर्डिंग ये इस पूरे साम्राज्य में ये जो पहाड़ियाँ थी वो पंपा देवी के द्वारा आवासित थी, वहाँ पे रहती थी. ये इस क्षेत्र की आराध्य देवी थी. उनकी शादी किससे हुई? विरूपाक्ष से. ये दो परंपराएं हमको यहाँ पे दिखाई देती हैं. इस क्षेत्र के इतिहास को जानने के लिए हमें लिटरेचर का सहारा लेना पड़ता है. लिटरेचर में माइथॉट्स में इन दोनों कहानियों का उल्लेख विजयनगर की प्राचीन परंपराओं में. So I think you are getting understand. Virupaksha, the guardian deity of the kingdom, also recognized as a form of Shiva. अब दो चीजें क्लियर हो गई. दो चीजें क्या क्लियर हो गई मैं आपको दिखाता हूँ. सबको हटा दीजिए. पहली बात, फर्स्ट थिंग इज दैट द होल एरिया was ruled or controlled by in the ancient time Bali and Sugriv. कहानी कहाँ से आती है? रामायण से. पहली परंपरा है. दूसरी परंपरा के अनुसार पंपा देवी
एंड विरूपाक्ष। विरूपाक्ष गार्जियन ऑफ दिस सिटी। विरूपाक्ष, इट इज द डिफरेंट रूप ऑफ लॉर्ड शिवा, ऐसा उनका मानना है। और पंपा देवी क्या है? गॉडेस ऑफ सिटी। दोनों परंपराओं में दो बातें क्लियर। इन चीजों को हम लोगों ने आपसे डिस्कस किया, तो यहां तक क्लियर है कि अमॉन्ग दीज हिल्स आर फाउंड Jain temple of the pre-Vijayanagar period as well. In the other word, the area was associated with the several sacred traditions. कहता है these hills, जो विजयनगर हिल्स हैं, ये हिल्स की हम लोग बात कर रहे हैं। ये हिल्स में एक कहानी रामायण से जुड़ी है, दूसरी कहानी पंपा देवी से, और तीसरी स्टोरी कहती है जैन टेम्पल और shrine was also on that area. इस एरिया पे ये भी फैले हुए हैं, तो हम इसके आधार पे कह सकते हैं कि यहाँ पे ये साम्राज्य रहा। So, my dear, it is very clear what I told you, that in the my thoughts, in the literature, the two traditional story which directly relate with this विजयनगर। विजयनगर से इसको रिलेट किया गया। पहले में बाली और सुग्रीव जो रामायण में है, कहा गया कि ये एरिया, ये पहाड़, ये पठार जो थे वो रामायण में वर्णित किष्किंधा पर्वत था। और दूसरे में, दूसरे मत के अनुसार, दूसरे परंपरा के अनुसार, इस पूरे क्षेत्र पे पंपा देवी जो नगर की देवी थी, वो नगर देवी के रूप में थी, और इनकी शादी विरूपाक्ष से हुई। विरूपाक्ष शिव का ही एक रूप है। तो आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर कि अब ये मन में आपके विचार नहीं होगा कि कौन सा इसका नाम, इस क्षेत्र पे प्राचीनता इसकी क्या है। तो विजयनगर का जो क्षेत्र था, मैंने हिस्टोरिकल आधार पे आपको, ऐतिहासिक आधार पर बताया था कि जो विजयनगर क्षेत्र था, इस विजयनगर क्षेत्र पे पूरा का पूरा क्षेत्र चोलों के राज्य में आता था। चोल शासकों के समय में आता था ये क्षेत्र, और चोलों के बाद इस क्षेत्र पे एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। वो साम्राज्य थी विजयनगर साम्राज्य, और 310 ईयर्स तक ये शासन चलता रहा। परंपराओं में इसके विभिन्न नाम मिलते हैं, परंपराओं में इसके कई सारी चीज़ों का उल्लेख हमने आपसे किया था। देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन। आइए, कहता है टेम्पल बिल्डिंग इन दिस रीजन हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री। इस क्षेत्र में मंदिरों के निर्माण का एक लंबी परंपरा रही है। मंदिर खूब बनाए गए इस क्षेत्र में। द्रविडियन आर्किटेक्चर के टेम्पल चोला डायनेस्टीज में खूब बनवाए, और फिर इसी आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए विजयनगर रूलर्स ने भी अपने मंदिर बनवाए, मंदिरों का निर्माण कराया। तो ये एकदम क्लियर था, सिंपल है। यदि आप अपने बुक को पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तो बुक में भी क्लियरली कहता है कि जो तुंगभद्रा नदी के तट से लगभग ये लगा हुआ जो शहर है, वो चट्टानी उत्तरी भाग जो रॉकी एरिया है, हिली एरिया है, नॉर्दर्न पोर्शन, अगर इसकी तरफ आप ध्यान से देखें तो कुछ कहानियाँ यहाँ के स्थानीय मान्यताओं में आपको मिल जाएंगी। इन पहाड़ियों के बारे में रामायण में उल्लिखित है कि बाली और सुग्रीव के वानर राज्य का ये क्षेत्र रहा। इस क्षेत्र पे बाली का शासन था। बाली और सुग्रीव दोनों ने इस क्षेत्र में शासन किया। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार
जो यहाँ के स्थानीय लोक देवी हैं, मातृ देवी हैं, पंपा देवी ने इन पहाड़ियों में विरूपाक्ष जो राज्य के संरक्षक देवता तथा शिव का एक रूप माने जाते हैं से विवाह कर तप किया था। उनके विवाह से मतलब पंपा देवी जो थी वो विरूपाक्ष से शादी करने के लिए इन पहाड़ियों पे तप की थी। ये चीज़ है, ये स्थानीय मान्यताओं के अनुसार है। तो दोनों तरीकों से संरक्षक देवता विरूपाक्ष विजयनगर शासकों की महत्वपूर्ण देवता थे। इंस्क्रिप्शन में इस बात का उल्लेख मिलता है। इस विवाह को यहाँ के लोग आज भी मंदिरों में बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इन पहाड़ियों में विजयनगर साम्राज्य के पूर्वकालिक जैन मंदिर भी मिले, जिन्हें शब्दों में इट मीन्स मतलब जो जैन मंदिर की मैंने बात की तो कहता है कि सिर्फ यहाँ पे शिव मंदिर या अन्य परंपराओं के मंदिर नहीं, बल्कि विरूपाक्ष के साथ साथ यहाँ पे जैन धर्म से संबंधित मठ और मंदिर भी प्राप्त होते हैं। इस क्षेत्र में विजयनगर साम्राज्य में पूर्वकालिक जैन मंदिर भी मिले। दूसरे शब्दों में यह क्षेत्र कई धार्मिक मान्यताओं से संबद्ध था। इस विजयनगर एरिया में विभिन्न धर्मों के लोग निकोल करते हैं। अब इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण का एक लंबा इतिहास रहा है, जो पल्लव, चालुक्य, होयसल तथा चोल वंशों तक आता है। अब कहते हैं यहाँ पे अगर आप टेम्पल आर्किटेक्चर को देखिए तो यहाँ पे मंदिरों के निर्माण का एक लंबा कार्यक्रम दिखाई देता है। कई सारे राजवंश जो इन क्षेत्रों के गठन किए, उन्होंने मंदिरों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो डिफरेंट डायनेस्टीज who ruled on this region, they were very much aware of the temple architecture. They also taking interest to building the temples. मंदिर को बनवाने के लिए उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन्होंने इन पे इंटरेस्ट लिया। कहता है द टेम्पल्स बिल्डिंग इन द रीजन हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री गोइंग बैक टू डायनेस्टीज such as the Pallavas, okay, Pallavas, first चालुक्य, बुक में देखिए डायनेस्टीज के नाम दिए हुए हैं। कहता है पल्लवास, चालुक्य, चालुक्य कहता है उसके बाद होयसलास, होयसलास एंड चोलास। तो कहता है इतने 4 राजवंशों का क्षेत्र रहा है ये जो विजयनगर का पेनिनसुलर रीजन रहा है। कि विजयनगर के पूर्ववर्ती काल में जहाँ पे 4 राजवंश शासन किए, चारों ने भिन्न भिन्न काल भी इस क्षेत्र में शासन किया। ये वही है इन क्षेत्रों में। और फिर यहाँ पे इसी के विजयनगर में why I am telling you why I want to connected these dynasties with the Vijayanagar, because they use the different type of temple architecture. पल्लवों के टेम्पल आर्किटेक्चर, चालुक्यों के टेम्पल आर्किटेक्चर, होयसल और चोलास। तो चालुक्य और होयसल के जो टेम्पल है और जो चोलोस के टेम्पल, चोला आदिवासी, चोलों में द्रविड़ीय है, द्रविड़ीय टेम्पल आर्किटेक्चर
द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर को चोल और होयसल्स बेसर बेसर टेम्पल आर्किटेक्चर को। तो यहां पे दो चीजें, पहली चीज कि बेसर टेम्पल आर्किटेक्चर, द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। मोस्टली विजयनगर में जो टेम्पल्स हैं वो, जो विजयनगर के टेम्पल्स हैं वो द्रविडियन शैली में बने हैं। द्रविडियन मेथड से बने। इसी द्रविडियन मेथड को कौन यूज करता था? चोला रूलर। क्या खासियत थी द्रविडियन टेम्पल की? कल मैंने आपको बताया था। Yesterday it was discussed by me the temple architecture of the Chola rulers that was totally based on द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। एक सिंपल स्ट्रक्चर, पिरामिडाकार मंदिर का निर्माण। तो कहता है, आगे बुक कहता है, the rulers very often encourage temple building as means of associating themselves with the divine. Often the deity was explicitly or the implicitly identified with the king. Temple also functioned as a center of learning. Besides, rulers and other often granted land and other resources for the maintenance of the temples. Consequently, temples developed as a significant religious, social, cultural and economic center. From the point of view of the rulers, constructing, repairing and maintaining temples were important means of winning support and recognition for their power, wealthy and beauty. My dear, during Vijayanagar, the temple played very important role. It was not a center of the religious purpose. It was also the center of the different things. Like it is also a study center, like schools. It is also the economic center, the different type of markets that was set up along with temple. That was cultural centers because the different type of poets, different type of the scholars, they reached temple, they studied there and they wrote the different type of texts. They compare the one other religious traditions to their own traditions. Different type of the councils that was organized in the temple areas. तो सांस्कृतिक केंद्र के रूप में, आर्थिक केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में और सामाजिक क्रियाकलापों के केंद्र के रूप में भी मंदिर महत्वपूर्ण है। मंदिरों के विकास के लिए राजाओं ने प्रचुर दान दिया, लैंड डोनेट की, जमीनों का दान दिया, भूमि दान दिया, जिसे अग्रहार कहा गया। विजयनगर में चातुर्वेद मंगलम कहा गया उसे। तो चातुर्वेद मंगलम जो ग्राम दान दिए जा रहे हैं वो मंदिरों के मेंटेनेंस के लिए थे। राजा समय समय पे स्वयं मंदिरों का मेंटेनेंस, मंदिरों का निर्माण, मंदिरों के लिए काम करते थे। मंदिर क्यों बनाए जाते थे? मंदिरों के बनाने के पीछे का एक सबसे बड़ा कारण था, इससे राजा अपने वैभव को, अपने ऐश्वर्य को दिखाता था। राजा अपने उन चीजों को शो करने का प्रयास करता था जो उस समय की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, उसकी गौरव, उसकी प्रतिष्ठा को भव्यता से दिखाए। It is likely that the very choice of the site of the Vijayanagar was inspired by the extensive of the shrine of Virupaksha and the Pampa Devi. In fact, the Vijayanagar king claimed to ruler behalf of the god Virupaksha. All while orders were signed Sri Virupaksha, usually in the Kannada script. Rulers also indicated their close links with the gods by using the title Hindu Suratran. This was a
Christianization of the Arabic term Sultan, Suratran equals Sultan, meaning king. So literally meant Hindu Sultan. My dear, this we will continue this topic and I will try to inform you the Dravidian temple architectures and the basic. My dear, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, बातें करेंगे. गुड बाय.